Welcome. Welcome to the series of lectures physics once again. We have been discussing the chapters of physics and presently discussing the chapter friction, and all the videos have been uploaded on my YouTube channel Grand Physics, where you can find out the chapter wise discussion and solutions of so many problems. Presently, we are discussing friction. So go to Grand Physics and search this channel, see the solutions of so many problems. So, taking a step ahead, we can see a problem that is depicted on the board and we can discuss it. So, what this problem says? This problem says a heavy chain with a mass per unit length rho, mass per unit length is given, is pulled by a constant force F. You can see that constant force X is acting at one of the ends of this chain. The chain is initially at rest on the rough surface. Initially, all the chain are placed on a rough surface. With x equals to 0, x equal to 0 you can see means this part, they are talking about this part, and if we take this being the rough surface and on the right side of the x equals to 0 we have a smooth surface, means there is no friction. Now if the coefficient of kinetic friction between the chain and the rough surface is mu k, that is given. Here we are talking about the kinetic friction, that is mu k on this part. Determine the velocity of the chain when x equals to L, that is written. You have to find out V when x equals to N, means the part that is on the rough side. Initially the whole part of this chain was on the rough surface, but the force F is acting and it is pulling the chain. So after some time you can see that the whole part of the chain will go beyond x equals to 0. So you have to find out the velocity, because after that there is no friction, a smooth surface, so it will keep moving. So just when the last part of this chain comes at x equals to 0, you have to find out the velocity of the chain that is being asked. So just suppose what happens, some part अगर हम देखेंगे तो इसका कुछ पार्ट जो है एक एक करके यह ब्लॉक, अब जो नेक्स्ट ब्लॉक रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस की तरफ जाएगा वो ये पार्ट होगा, फिर उसके बाद ये पार्ट, फिर ये पार्ट, और धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स यहां से चले जाएंगे. तो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे आप सोचिए, सपोज कि ये इतना पार्ट जो है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x तक, इसका लेंथ x अगर हम मान लें, तो यह x पार्ट जो है वह स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और उस पे फोर्स F काम कर रहा है. और तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स. टोटल डिस्टेंस L है, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स. तो अगर किसी टाइम t पे अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t, किसी टाइम t पे यदि बात करूं, t इक्वल्स टू 0 पे होल पार्ट रफ पे होगा. अब किसी टाइम t पे इसका कुछ पार्ट स्मूथ सरफेस पे है और कुछ पार्ट जो है वह रफ सरफेस पे है. तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट लेंथ, यह रो दिया हुआ है. तो अगर x पार्ट स्मूथ सरफेस पे है तो यह पार्ट कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स. द पार्ट ऑफ द चेन
parts of chain on rough surface कितना हो जाएगा L माइनस एक्स, करेक्ट। तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ चेन ऑन रफ सरफेस कितना आ जाएगा, रो, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ का मास रो है, तो इसका मास कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। करेक्ट। अब इस पार्ट पे अगर इसको छोटा सा एलिमेंट मानूं, इस पार्ट पे जो सरफेस है वो रफ सरफेस पे, इस पे फ्रिक्शन काम करेगा, और चूंकि यह मूव कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स F काम कर रहा है, इसीलिए इसका काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वह म्यू के भी दिया हुआ है। तो जैसे ही यह चेन राइट साइड की तरफ मूव कर रही है इस सरफेस पे, या किसी न किसी सरफेस पे ही रखी हुई है, या इस सरफेस पे रखी हुई है, तो इस सरफेस पे यह चेन राइट वर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पे, इस पार्ट पे, यह तो पार्ट स्मूथ है, लेकिन L माइनस एक्स की जो बात कर रहे हैं, तो L माइनस एक्स पे अगर इसको आप देखेंगे तो एक फोर्स यहाँ F कांस्टेंट काम कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो सारे चेन के हर एक छोटे से पार्टिकल पे यह काम करेगा F, और जैसे ही यह राइट साइड में जाएगा तो एक फोर्स इस पे आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का F के, जो कि इस पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, इस पे नेट फोर्स जब काम करेगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F माइनस F के, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की नेट फोर्स है, तो इसको जब आप मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा इसका। तो मास जब लेंगे हम इस पूरे चेन की लेंथ का, तो यह पूरे इस पार्ट का मास को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप निकालेंगे एफ के का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एफ के इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू के इंटू एन, और जब भी देखेंगे तो इस पे मास नीचे की तरफ, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या आएगा, ऊपर की तरफ। इसका अगर छोटे से पार्ट का डिस्कस करूं तो यही डायग्राम बनेगा। तो अब इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, म्यू के एन का वैल्यू कितना है, एन mg के बराबर होगा, तो इसका मास कितना है, रो L माइनस एक्स इंटू जी, यह एफ के होगा, यही वैल्यू आएगा यहां से, म्यू के रो L माइनस एक्स इंटू जी। तो अगर आप इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नेट फोर्स जो है वह किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के। यह नेट फोर्स इस पार्ट पे अगर देखेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो अब अगर ये बात करूं मैं यहां से, अगर इसका, तो यहां से क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स जो है इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू के रो L माइनस एक्स इंटू जी, और अगर इसके नेट फोर्स की बात करें तो एफ नेट की बात कर रहा हूं, तो यहां से अगर आप एक्सीलरेशन निकालने का कोशिश करेंगे ए की, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स बाई एम। तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू के रो L माइनस एक्स इंटू जी डिवाइडेड बाई रो इंटू एल।
क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ कितना है रो, तो टोटल चेन का लेंथ कितना है एल, तो टोटल चेन का मास कितना हो जाएगा रो इंटू एल। तो अब जब इस पार्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा कि इसका पार्ट जो है छोटा छोटा पार्ट करके x इक्वल टू 0 के राइट जाएगा। तो जैसे ही छोटा छोटा पार्ट करके जाएगा और ये किसके टर्म में है x, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या जाएगा dx, फिर उसके बाद क्या जाएगा छोटा सा पार्ट dx। तो क्या है यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या वेलोसिटी निकालिए कब, जब x का वैल्यू l है। तो x का वैल्यू एक बार में l नहीं होगा, जब स्टार्ट किया होगा तो x का वैल्यू राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होगा, पूरे का पूरा लेंथ जो था वो रफ सरफेस पे रखा हुआ था, तो x का वैल्यू क्या था 0। अब फिर dx प्लस dx प्लस dx, छोटा छोटा पार्ट राइट साइड में जाएगा तब इसका लेंथ क्या होगा l। तो हमको क्या निकालना है वेलोसिटी, तो हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन को आप क्या लिखते हैं, आपको पता होगा कि a इक्वल्स टू dv बाई dt हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू कर देते हैं dx बाई dt, और ये dx बाई dt क्या कहलाता है v, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू v dv बाई dx लिख सकते हैं, dx बाई dt v। तो यहां से अब जब हम इक्वेशन निकालेंगे इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे कि v dv बाई dx इक्वल्स टू f माइनस म्यू के रो l माइनस एक्स इंटू जी बाई रो इंटू एल, यही इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को v dv के टर्म में हमको लिखना है, तो इसको इस सारे पार्ट्स को मैं हटा रहा हूं यहां से और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पुटिंग द लिमिट। यहां से इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि v dv इक्वल्स टू f माइनस म्यू के रो l माइनस एक्स इंटू जी बाई रो इंटू एल इंटू डी एक्स। रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रेट करेंगे आप दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, यहां v के टर्म में है तो स्टार्ट किया है 0 से, किसी टाइम पे हमको वेलोसिटी v निकालना है, और यहाँ x का dx का इंटीग्रेशन है तो x पहले 0 था, लास्ट में कितना हो जाएगा l, जब पूरे का पूरा लेंथ रफ सरफेस पे था तो x 0 था। अब जब ये राइट साइड में पूरे का पूरा स्मूथ सरफेस पे चला जाएगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा l, और उसी टाइम पे हमसे क्या पूछा जा रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ v dv इंटीग्रेशन 0 से v तक है तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा अगर आप देखें तो 1 बाई रो, नहीं तो रानी जी साथ में इसको ले लेते हैं, f बाई रो इंटू एल डी एक्स कितना आ जाएगा 0 से l तक, माइनस म्यू के रो एल कैंसिल जी डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से l माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रो रो कैंसिल तो म्यू के जी बाई एल एक्स डी एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन 0 से l तक यही आएगा। म्यू के रो एल कैंसिल हो जाएगा तो म्यू के जी बाई एल, सॉरी म्यू रो एल कैंसिल तो म्यू के जी डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें म्यू के रो कैंसिल हो जाएगा तो म्यू के जी बाई एल डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू f बाई रो इंटू एल, और dx का इंटीग्रेशन x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है 0 से l तक, माइनस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू के जी बाहर dx का इंटीग्रेशन x 0 से l तक, और प्लस
म्यू के जी बाई एल बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से एल तक। अब लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एफ रो बाई एल इंटू एल माइनस म्यू के इंटू जी एल प्लस ये कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा यहां से एक। अब आप देखेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एल एल कैंसिल एफ बाई रो दिस एल कैंसिल हो जाएगा माइनस म्यू के जी एल प्लस हाफ म्यू के जी एल, तो माइनस हाफ म्यू के जी इंटू एल, यही आएगा। यहां से आपको वी स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से आप लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2f बाई रो माइनस म्यू के जी एल। सो यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा अंडर रूट 2f बाई रो माइनस म्यू के जी एल एंड इट विल बी योर आंसर। सो यह वेलोसिटी जो है, यह वेलोसिटी कब है, जब x का वैल्यू l हो जाता है। मीन्स कंप्लीट रफ सरफेस जो है जिसपे यह चेन रखा हुआ था, यह कंप्लीट चेन स्मूथ सरफेस पे चला जाएगा। कब, जब इस पे कांस्टेंट फोर्स F काम कर रहा है, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो आएगी वह 2f बाई रो माइनस म्यू के जी एल। रो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे प्रॉब्लम को, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी पे, जिसको सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये क्या है कि सपोज कीजिए कि यह कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस है यह, इस पे एक 10m मास का यह ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है यह μ2 है या μ1 है, और यहां पे μ2 है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं कि a small block of mass m is projected on a longer block of mass 10m and length l। इसका लेंथ भी दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, या कोई सरफेस है, ओरिएंटल सरफेस, विथ अ वेलोसिटी v। इसको एक वेलोसिटी दिया गया है राइट हैंड साइड में v। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज μ2। सॉरी, टू ब्लॉक के बीच में जो है यह μ2 है, while the friction coefficient between the lower block and the ground is μ1 and this is, अगर आप बात करेंगे तो यह μ1 है। Yes, that is given in the question. Given that μ2 greater than 11 μn, क्वेश्चन में दिया गया है कि μ2 greater than 11 μn, पूछा जा रहा है find the minimum value of v such that the mass m falls off the block ऑफ 10m। या इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट द मास m, यह मास जो है
वह फॉल्स ऑफ द ब्लॉक 10m, कि 10m से वह मास नीचे गिर जाए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉल्स ऑफ, यस, या नीचे गिर जाए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एक्चुअली इस 10m का जो ब्लॉक है, जो बिगर ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे किसी भी तरह का फोर्स या वेलोसिटी अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। वेलोसिटी जो मिला है वह एक स्मॉलर ब्लॉक जो कि m मास का है, उसको एक वेलोसिटी दी गई है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है, और ग्राउंड और यह बिगर ब्लॉक जो 10m का है उसके बीच में भी फ्रिक्शन है। तो जैसे ही इस मास को वेलोसिटी भी मिलेगा, आप सपोज कीजिए अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम को मैं डिस्कस करूं, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऑब्वियसली या इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, या 10m के ब्लॉक पे रखा हुआ है। तो जैसे ही यह राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन आ जाएगा। इसको सपोज कीजिए इसका वैल्यू हम F1 ले लिए हैं। यह कौन लगा रहा है इस पे? तो 10m का जो ब्लॉक है, या 10m का ब्लॉक इस m ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जैसे ही यह फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो यह m भी यह 10m के ब्लॉक पे, अगर इस 10m के ब्लॉक की बात करूं, अब 10m के ब्लॉक को इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा, राइट साइड में। क्योंकि ये 10m का ब्लॉक जो है इस स्मॉलर ब्लॉक को F1 फ्रिक्शन लगा रहा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में लगा लेगा। जैसे ही इस पर आएगा, जब सिंगल फोर्स राइट साइड में काम करेगा तो इस ब्लॉक को राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी, या यह मूव करेगा। जैसे ही यह मूव करेगा तो इसको लेफ्ट साइड में एक फ्रिक्शन का फोर्स ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में F2 आ जाएगा, करेक्ट। तो आप इस दोनों का वैल्यू लिखिए। पहले F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? F1 इक्वल्स टू, और इस पे अगर इस ब्लॉक की बात करें तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ, यही फोर्स काम करेगा इस पे। तो अगर इसके बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? F इक्वल टू μ2, और n का वैल्यू कितना होगा? mg के बराबर, तो μ2 mg, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए आप। इसी तरीके से अगर हम F2 की बात करेंगे, सॉरी इस ब्लॉक की बात करेंगे, F2 की बात कर लेते हैं पहले। अगर F2 निकालने के लिए बोला जाए तो F2 इक्वल्स टू क्या आएगा? F2 ग्राउंड और 10m के बीच जो सरफेस है उस पे काम कर रहा है। तो इस पे जब बात आएगी F2 निकालने की, तो इसके लिए μ1, m का वैल्यू कितना हो जाएगा? यह 10m का ब्लॉक है और एक m ऊपर रखा हुआ है। इस पे जो नॉर्मल लगेगा इस सरफेस पे, यह 10m प्लस m 11m के चलते लगेगा। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11m, और g तो 11mg। तो यह F2 का वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगा 11 μ1 mg। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि μ2 ग्रेटर देन 11 μ1। अगर यह μ2 11 μ1 से है बड़ा, तो F1 as since μ2 greater than 11 μ1 according to question that is given in the question, so F1 greater than F2, F1 F2 से बड़ा है। अगर F1 F2 से बड़ा है तो यह 10m का ब्लॉक क्या होगा? राइट साइड में हॉरिजेंटली राइटवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट आ जाएगा, हॉरिजेंटली राइटवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकालिए। तो अगर एक्सीलरेशन निकालने की मैं बात करूं, इस पार्ट को हटाइए, तो यहां से आप देखिए F1 दिया हुआ है, तो A1 इक्वल्स टू क्या होगा? F1 बाई m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? μ2 इंटू जी,
और A2 की बात करूं तो A2 क्या होगा, A2 के लिए F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 कितना है, F1 म्यू टू mg माइनस F2 11 म्यू 1 mg बाई टोटल मास इसका कितना है 10m, 10 इंटू m, तो यहां से mm तो कैंसिल हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू टू माइनस 11 इंटू जी, सॉरी 11, चलिए इसको सीधा सीधा लिखते हैं, नो कंफ्यूजन, म्यू टू जी माइनस 11 म्यू 1 इंटू जी बाई 10, करेक्ट। तो A1 मिल गया और A2 मिल गया, यह किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इसका डायरेक्शन देखिए, F1 का डायरेक्शन F2 के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये रिटार्डेशन होगा एक्चुअली, इसमें रिटार्डेशन होगा, एक्सीलरेशन आगे की तरफ रिटार्डेशन, मतलब इसका डायरेक्शन लिए हैं हम लेफ्ट हैंड लिए हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, अगर आप इसको देखेंगे सही से तो रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। तो A1 और A2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2। रिलेटिव एक्सीलरेशन की अगर बात करूं, रिलेटिव A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, आप इस A1 प्लस A2 को निकालेंगे तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A1 का वैल्यू कितना है, म्यू टू जी प्लस A2 म्यू टू जी माइनस 11 म्यू 1 जी बाई 10, यहां से कितना हो जाएगा, 10 म्यू टू जी प्लस म्यू टू जी माइनस 11 म्यू 1 जी बाई 10, तो इसका A का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1 11, 11 कॉमन हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू 1 इंटू जी बाई 10, या क्या आ गया वैल्यू, A का वैल्यू निकल गया, एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन A कितना आया, 11 जी इंटू म्यू टू माइनस म्यू 1 बाई 10, यह वैल्यू आया A का। और अब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है कि यह नीचे आ जाए, तो भी और लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, यह रिलेटिव एक्सीलरेशन तब तक काम करेगा इस पे जब तक कि यह ब्लॉक इस पूरे के पूरे एल लेंथ को कवर नहीं कर ले। तो जैसे ही एल लेंथ को कवर करेगा, इस पे वेलोसिटी दी गई है आगे की तरफ बढ़ेगा, तो पूरे का पूरा एल लेंथ जब कवर हो जाएगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसकी ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन, अगर इक्वेशन को आप यूज कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन क्या आता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिल करके आएगा, 0 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, जो हमको निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, वी मिनिमम माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है, ए इंटू एल, तो यहां से आपको वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल, ए का वैल्यू कितना आया है, 11 जी म्यू टू माइनस म्यू 1 बाई 10। तो यहां से जब आप देखेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 एल जी एल इंटू जी म्यू टू माइनस म्यू 1 बाई 10, और ये अंडर रूट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में आप इसका
मिनिमम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं तब जबकि यह ब्लॉक इससे फॉल्स ऑफ गिर जाएगा। इसको गिरने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? पूरे का पूरा एल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस मिनिमम वेलोसिटी से। इसीलिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब इस ब्लॉक का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस बिगर ब्लॉक। तो आप A1 निकालिए, A2 निकालिए, A1 इसका होगा, A2 इसका होगा, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो एक्सीलरेशन ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक with respect to the bigger block will be A1 plus A2 और A1 plus A2 A2 minus A1 कर दीजिए आप, तो A1 plus A2 आ जाएगा। क्योंकि एक जो है वो रिटार्डेशन है, ये निगेटिव फॉर्म में है, यह निगेटिव एक्सीलरेशन है और यह पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन इस दोनों का प्लस आ जाएगा। यह प्लस करके यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हैं 11/g μ2 minus μ1। तो यहाँ से जब v स्क्वायर आ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो a का वैल्यू आपको रिलेटिव एक्सीलरेशन के टर्म में आएगा। l का s का वैल्यू कितना है, l लेंथ जो दिया हुआ है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग वेलोसिटी v का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट about friction and solved so many problems on friction concept. We shall be using friction in different cases, but before not taking other problems, first of all we shall learn the concept of circular motion. So in the next class we shall see you all discussing with me the concepts of circular motion. Till the time you can go and search my YouTube channel, name is Grand Physics. Where we have discussed lots of problems, lots of concepts. So go and learn. Solve as many problems as you can. This is the only way to learn physics and solve some difficult problems. So thank you very much for attending this class. See you all in the next class.